पहले के जमाने में क्या था, खुली अर्थव्यवस्था थी। आपके जमाने में तो ऐसे सभापति महोदय दरवाजे ऐसे खुले थे कि आगे के नहीं पीछे के भी दरवाजे खुले थे और कहीं ना कहीं खिड़की रोशनदान भी खुले हुए थे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। Honorable Chairman, sir, our respected members from opposition have raised so many apprehensions about the economy. But I think their apprehensions were more governed by the anti-Modi and anti-BJP obsession than by the factual submission. I just want to quote 2 or 3 statements. Number one, the entire world, 90% of the entire world is witnessing the economic slowdown. It's not me or any member of our government is saying. Who is saying? Kristalina Georgia, chairman of the IMF, in their inaugural address in Washington, D.C. last month. Then, the entire world is going down synchronously towards slowdown for around 3% of growth, the IMF report. And as far as the international trade is concerned, the trade and development figures are being readjusted from 3% to 2.3% for the coming year. Who is saying this? UNCTAD, the United Nations Conference for Trade and Development. So my submission is, whatever is happening outside, all the learned members of the House are very well aware, whether it is a European problem or the China-America trade war. Yes, I agree. The slowdown is there. The weather is not good. जब मौसम नहीं अच्छा होता है तो कहा जाता है कि सीट बेल्ट बांध के रखें, हमसे पूछा जा रहा है डांस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में, in the rough weather, what we are doing, the best possible capability by which our government and the Honorable Finance Minister is trying to do. I would just like those who are saying that this is the worst possible scenario, this is the best, this is the worst ever recession and other things. The economic statistics of today are still, we are having $447.8 billion US foreign exchange reserve, which is the all-time high. We are having still more than 82,000 crore rupees of foreign portfolio investment just. We are just having the venture capital investment of 3.31 billion US dollars. So the things are definitely adverse, as I've said, worldwide. But still, whatever is happening inside, the fact should also be understood and accepted. Still, one more thing, that from 2014-15 to this year, the gross fiscal deficit is 4.1% to 3.4%, despite any debt is not being increased. अभी माजिद मेनन साहब कह रहे थे कि साहब वो जो दिख रहा है वो सुनाई नहीं पड़ रहा है और जो सुनाई पड़ रहा है वो दिख नहीं रहा है। अब मेरे विचार से दिखने और सुनने दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि आपका मन जो देखना चाहता वही देखता और जो सुनना चाहता वही सुनता है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति. It means those who have shunned their wisdom, howsoever the facts and scriptures you show them, can never see the truth, like those who have closed their eyes or lost their eyesight. Howsoever good mirror you show, they will never get the clear picture. अब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी आरोप लगाया गया कि हमारी सरकार ने बड़े बिजनेसमैनों के लिए किया, गरीबों के लिए नहीं किया. I would like to remind the first speech of Honorable Prime Minister on 15th of August 2014. सबसे पहले क्या कहा था? जन धन योजना किसके लिए थी? गरीब के लिए, अमीर के लिए. स्वच्छ भारत योजना किसके लिए थी? अमीर के लिए, गरीब के लिए.
This Jan Dhan Yojana was the biggest financial inclusion in the entire world. And not only this, and after that, there was a structural reform which was carried on by our government. Like, I do not want to go detail into the figures. All of you must be knowing that once this Jan Dhan Yojana was done, the accounts were connected, and then the direct benefit transfer was implemented in totality. It saved around 1.5 lakh crore rupees of the government. ये किसके पास पहुंचा? ये गरीब के पास पहुंचा। और आपको पता है ये गया किसके हाथ से? ये 8 करोड़ अदृश्य महानुभावों के हाथ से गया, जो सिर्फ कागज पे दिखाई पड़ रहे थे और कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि गरीब तक आर्थिक विकास के उस स्रोत को पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने कई बड़े कार्य किए। और जो परिवर्तन है इस बुरे दौर में भी, मैं कहना चाहूंगा, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थिति है, तब भी अगर आप देखें तो कंजम्पशन की बात हमारे कई सम्मानीय सदस्यों ने उठाई, तो विगत कुछ वर्षों में कंजम्पशन चाहे चावल और गेहूं का हो, कंजम्पशन चाहे मोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट्स का हो, 7% से लेके 35-40% तक की वृद्धि हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन जैसी वो दिखाना चाह रहे हैं उसी प्रकार की वस्तुस्थिति दिखाई पड़ रही है। और एक फैक्ट को हमें और ध्यान रखना चाहिए, इन द लास्ट 5 years द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन द बिगेस्ट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। जीएसटी इतना बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स था, वेदर इट वाज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एनसीएलटी। जब आप स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं तो कुछ समय के लिए आपको कभी कभी थोड़ी सी असुविधा भी दिखाई पड़ सकती है। अरे मोबाइल आप चेंज कर लीजिए एक से दूसरा, तो आपको 1 आध हफ्ता लगता है उसको एडजस्ट करने में। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप देखिए कि किस प्रकार के स्ट्रक्चरल चेंज कराए गए। टू बेनिफिट हुम? टू बेनिफिट द पर्सन स्टैंडिंग on the last pedestal of the society. So the entire economic reforms were conducted with the consideration of the poor people. और जब हमने रूल्स बनाए, अभी कहा गया कि साहब रूल्स के अंदर चेंजेस कई बार हुए। The changes signifies the sensitivity and the immediate reaction of the government. जैसे जीएसटी के बारे में एमएसएमईज के लिए कहा कि 30 दिन के अंदर उनका जीएसटी रिफंड होना चाहिए। अभी यह बात कही गई, जैसे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कारपोरेट टैक्स में रिडक्शन किया है, तो मैं पूरी विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि यह कारपोरेट टैक्स क्या सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है? क्या कारपोरेट में काम करने वाले अधिकारियों के लिए नहीं? उसमें काम करने वाले इंजीनियरों के लिए नहीं? उसमें काम करने वाले वर्कर्स के लिए नहीं? When we talk about corporate, it includes everybody from their owner to the normal worker who is working on the floor of the factory. And when it is done, 15% का जो किया गया मैन्युफैक्चरिंग में, हाँ ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आपको नजर आता है कि इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर में कमी थी, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अमेरिकन मार्केट देखिए, यूरोपियन मार्केट देखिए, चाइनीज मार्केट देखिए। One fact I would like to put, Hyundai, which is the second largest car manufacturing company of the world, हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने में पहले ही बोल रहा हूं, but still their production factory in Chennai has become the biggest in the world because the Chinese factory has gone down too low. इसलिए मैं कहता हूं, इस हकीकत को देखिए और समझिए, और उसके बाद जो आपको उचित लगे वो सरकार से प्रश्न पूछिए, सरकार पे दोषारोपण करिए। हमें किसी भी प्रकार के कोई गुरेज नहीं है। वित्त मंत्री महोदया ने जैसे ही परिस्थिति दिखाई पड़ी, तो चाहे रियल एस्टेट सेक्टर को 25,000 करोड़ रुपए का अथवा बैंकिंग सेक्टर को 70,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया, अब उसमें सवाल उठ रहा है कि साहब ये बैंकिंग सेक्टर में जो लोन्स दिए गए थे उनकी वजह से एनपीए हो रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू आस्क, भाई जब हम लोन लेते हैं तो कितने साल का लेते हैं? अगर हम में से आप में किसी ने हाउसिंग लोन लिया होगा तो 10 इयर्स तो मिनिमम होता है, कोई 2 साल 3 साल का तो होता नहीं है। इवन इफ यू गेट ए व्हीकल लोन, इट इज फॉर 5-6 इयर्स। इफ यू गेट एन एजुकेशन लोन, इट इज अ 5-6 इयर्स। तो अगर आप देखें
तो आज लोन्स के रिपेमेंट के समय जो भी प्रॉब्लम उभर के सामने आ रही है तो वो कितने साल पुरानी है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हाँ, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि किस ढंग से इस फाइनेंशियल एस्पेक्ट को और बेहतर किया जा सके और जो जो गलतियां हो गई थीं उन गलतियों को आज की परिस्थिति में सुधार कर देश के लिए क्या किया जा सके। और इसमें एक और बात कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना ही नहीं, इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पुअर मैन, वी वर स्टैंडिंग फ्रॉम द डे वन। अभी आप सबने देखा होगा आरसीईपी में वी हैव ऑप्टेड आउट फ्रॉम द आसियान कंट्रीज। क्यों? बिकॉज वी फाउंड दैट the entire terms and conditions were not conducive to the interest of the marginal shopkeepers, traders and farmers। और ये हमारा आज का नहीं है। 2014 में हमारी सरकार आई, बाली में जब WTO की समिट थी, आप याद करिए, उस समय ऐसी स्थिति थी कि ऐसा दबाव था कि हम वो मांग स्वीकार कर लेते जिसके चलते कुछ साल के बाद शायद हम किसानों को MSP भी नहीं दे पाते, मगर हमने स्टैंड लिया और WTO के उस डिसीजन को हमने रोकने की बात की। फिर चाहे 2016 में पेरिस में जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई, हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पुअर पीपल ऑफ इंडिया। और इतना ही नहीं, मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई थी तब तक फॉरेन से ब्लैक मनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने का कोई प्रावधान नहीं था। देयर वॉज नो लीगल इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कुड हैव गॉट इंफॉर्मेशन। नाउ इन successive arrangements and others, now we are in a position to get a real time information. And it also started in Sydney when in G20 summit Prime Minister has taken up this issue। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का विषय हो, देश के अंदर से लेकर बाहर तक, अर्थव्यवस्था के मामले पर हम लोगों ने पूरी ईमानदारी और पूरी दृढ़ता से काम किया है। अब एक और बात कहना चाहूंगा, जब डेवलपमेंट की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, तो एक लॉन्ग टर्म विजन भी साथ में होना चाहिए। हमारे देश में बहुत सी चुनौतियां मानी जाती थी, पर उन चुनौतियों को किस ढंग से हम अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं वो हमारी गवर्नमेंट ने आके दिखाया। सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश का पश्चिमी हिस्सा गुजरात और राजस्थान, यहां पानी कम गिरता है, सूखे की समस्या रहती है, यह एक चुनौती है। परंतु उसी के साथ वहां सूर्य भगवान का ताप प्रबल मात्रा में उपस्थित रहता है, तो क्यों नहीं सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए? यह एक अपॉर्चुनिटी थी। इसलिए हमारी सरकार ने आने के बाद जब हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी को न सिर्फ बहुत कई गुना बढ़ाया, बल्कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेंटर भी भारत में बनाया। अब दूसरा देखिए, देश का पूर्वी हिस्सा जिसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम, यहां पानी बहुत बरसता है, नदियों के पाट बहुत चौड़े थे, चुनौती है। अब इसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं? तो हमने उनका ड्रेजिंग किया और उन नदियों के पाट को चौड़ा करके इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट किया। और आप सबको इस बात की जानकारी है कि रेल और सड़क के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है उसके मुकाबले इनलैंड वाटरवेज के द्वारा 1/8 to 1/10 कॉस्ट आती है। तो आई जस्ट वांट टू से इन द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कई साथियों ने बताया कि हमने एयरपोर्ट्स बनाए, वो सब तो अपनी जगह है। हमने तो वो काम किए जो शायद पिछली सरकार के लोग सोच नहीं पाए कि इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक नया स्वरूप देना है, तो कैसे जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनको आर्थिक अवसरों में तब्दील करना है। अब एक बात और, मैं बात को बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए ये कहना चाहूंगा, हमारे कई साथियों ने एक बात कही कि साहब ट्रस्ट दिखाई नहीं पड़ा। डेरेक ओब्रायन साहब ने कहा विश्वास, किसका किस पर विश्वास है? तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अगर विश्वास देखना है तो आप इसी से देख लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान को 6,000 रुपया साल का देंगे, आपने कहा 6,000 रुपया महीना देंगे, 72,000 रुपए देंगे। पर विश्वास किस पे हुआ? विश्वास हुआ हमारे ऊपर, चूंकि हम जो भी दे रहे हैं वो सही नियत और यथार्थ से बात करके दे रहे हैं। एक और मैं बात कहना चाहूंगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी एक और बात कही गई, हमारे एक सम्मानित सदस्य ने कहा
मेड इन इंडिया इज द प्राइड, देन आई वुड लाइक टू आस्क, आज तक देश के 70 साल हो गए, मेड इन इंडिया की बात होती है तो हमारा देश चंद्रयान बना सकता है, मंगलयान बना सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, पर राइफल नहीं बना सकता। डज दिस थिंग साउंड्स लॉजिकल? इसका मतलब हम बना नहीं सकते, ये सच नहीं है, हम बनाना नहीं चाहते थे। इसलिए इकोनॉमी का एक नया डायमेंशन जिसमें कि हम डिफेंस प्रोडक्शन को भी आगे ले जा सकते थे, तो एक लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने उन सारे विषयों को भी टेकअप किया है जो शायद पूर्ववर्ती सरकारों के ध्यान में नहीं थे अथवा उनके विजन में नहीं थे। अब जहां तक हम ये कहना चाहेंगे कि आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति के ऊपर हमने इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस किए, गरीब के लिए सर्वाधिक जो आवश्यकता होती है, इसका उल्लेख हमारे कई साथियों ने किया, आयुष्मान भारत योजना का। सबसे ज्यादा गरीब को चिंता होती है तो किसकी? हेल्थ की। उस हेल्थ सेक्टर को इंश्योर करने के लिए चाहे उसके ऊपर हमारा कितना भी फाइनेंशियल बर्डन आया, पर हमने उसको करने का प्रयास किया। तो व्हाट आई वांट टू से कि फ्रॉम डिफेंस प्रोडक्शन टू ensuring the health benefit for every poor, for providing the legitimate due to the farmer and the MSP, to the providing relief to the corporate sector by reduction of the corporate tax, हमने वह सब कुछ करने का प्रयास किया है जो कि इस परिस्थिति में देश को आगे ले जाने में सक्षम था। फिर भी अगर किसी को कोई आपत्ति है तो सिर्फ ये कह के बात समाप्त करना चाहूंगा कि साहब, हो सकता है आपको लग रहा हो कि कहीं पे कोई कमी रह गई है, मगर साहब पहले के जमाने में क्या था? खुली अर्थव्यवस्था थी। आपके जमाने में तो ऐसे सभापति महोदय दरवाजे ऐसे खुले थे कि आगे के नहीं पीछे के भी दरवाजे खुले थे और कहीं ना कहीं खिड़की रोशनदान भी खुले हुए थे। इसलिए मैं कहता हूं, जिन लोगों ने उस ढंग से अर्थव्यवस्था चलाई और आज की अर्थव्यवस्था पे जो कमेंट कर रहे हैं, तो ये मैं कह के बात समाप्त करता हूं कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय जयराम रमेश जी।